Assalamu alaikum. I am myself is Dr. Ansari Farzana Mehbuzama from Chemistry Department, JT Science and Commerce College, मालेगांव. यहाँ हम आज देखेंगे TYBSc का केमिस्ट्री पेपर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री. The first chapter of analytical chemistry is gravimetry analysis. Before going the deep study of gravimetry analysis, here you must know the analysis are of two types: qualitative analysis and quantitative analysis. Qualitative analysis मतलब to determine the quality of the substance. The qualitative analysis is split into two types: the organic qualitative analysis and inorganic qualitative analysis. ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करते हैं. इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम डिटरमाइन करते हैं केटायन एंड एनायन. Whereas quantitative analysis, this word itself indicates that to determine the quantity. The quantity of the substance from the sample can be determined by measurement of the volume or by measurement of the weight. जब वॉल्यूम मेज़र करते हुए हम क्वांटिटी मालूम करेंगे उस वक्त तो कहलाएगा वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. और उसी में जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सम टाइम कॉल्ड एज टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस. और जब हम अमाउंट मालूम करते हैं वेट मेज़र करते हुए उस वक्त वो कहलाता है ग्रेविमेट्री एनालिसिस. Determination of the amount by measurement of its weight is called as gravimetry analysis. और यही हमारा आज का मेन चैप्टर है gravimetry analysis. Before going the deep study of gravimetry analysis, that means here in gravimetry analysis weight measure करते हुए amount हम मालूम करते हैं, इसीलिए gravimetry analysis में सैंपल का सॉलिड स्टेट में होना ज़रूरी है. इसीलिए ग्रेविमेट्री एनालिसिस में पहला काम हमारा रहता है कि उसका पीपीटी फॉर्म में कन्वर्शन. बट बिफोर गोइंग दी हाउ मच विच टाइप ऑफ दी स्टेप्स आर इन्वॉल्व, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, यू मस्ट नो दी टू टर्म विच इज़ applicable for gravimetry analysis: common ion effect, solubility and solubility product. Common ion effect is nothing but the degree of dissociation of weak electrolyte is suppressed by addition of another electrolyte which have one ion common with this weak electrolyte is called as common ion effect. वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन का डिक्रीज होना, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर जो एक आयन कॉमन रखता है दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट से, वो कहलाता है कॉमन आयन. और कॉमन आयन जैसे फॉर एग्जांपल NH4OH. NH4OH is a weak electrolyte. It dissociate feebly or to a smaller extent into NH4 plus and OH minus ion. अब यही NH4 plus और OH minus ion में हम जब ऐड कर देंगे अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड फार्मूला क्या है NH4Cl. तो NH4OH और NH4Cl में कॉमन आयन क्या हुआ NH4 प्लस. अब NH4 प्लस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और यही NH4 प्लस बहुत सारे कंबाइन होंगे OH माइनस से और दोबारा रिवर्स रिएक्शन होगी, मतलब वो जितना डिसोशिएट हुआ था फिर से अनडिसोशिएटेड फॉर्म में आ जाएगा, उसका डिसोशिएशन जो था वो फिर कम हो जाएगा और यही कहलाता है नथिंग बट कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट मतलब क्या? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट विच हैविंग द वन आयन कॉमन विद दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट. अब solubility and solubility product. Solubility of a compound at a given temperature is the maximum amount of compound which can dissolve in a definite volume of the solution at equilibrium is called as solubility. और समझने के लिए आप बोल सकते हो the dissolution of the solute in a solvent is called as its solubility. Solubility product क्या है? In a saturated solution of sparingly soluble salt. सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोले तो क्या? ऐसा सॉल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम रहती है, जिसकी सॉल्युबिलिटी निग्लिजिबल एक्सटेंड रहती है, या बोल सकते हो जिसकी सॉल्युबिलिटी इज लेस देन 0.01 मोल पर लीटर इज कॉल्ड एज स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट.
sparingly soluble salt, and the product of ionic concentration when raised to proper power is constant at a given temperature is called as a solubility product, and it is denoted by Ksp. You will be better understood with the help of one example. Consider AgCO3. AgCO3, that means silver carbonate. Silver carbonate is the example of sparingly soluble salt. It dissociates complete feebly into Ag plus and CO3 2 minus. Applying law of mass action to this equation, K is equal to Ag, जो नंबर ऑफ मोल रहेगा वो स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Ag स्क्वायर, Ag प्लस स्क्वायर CO3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड सिल्वर कार्बोनेट. हियर अमाउंट ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इज लार्ज क्यों रहेगा, क्योंकि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये डिसॉल्व होता है टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, और ये डिसॉल्व होता है टू अ स्मॉलर एक्सटेंट. डिसॉल्व होता है टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, और जब स्मॉलर एक्सटेंट पे डिसॉल्व होता है तो Ag प्लस और CO3 माइनस 2 की क्वांटिटी कम रहती है, जबकि अनडिसॉल्व फॉर्म की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है. डिसॉल्व होकर वो क्या करते हैं, केटायन एनायन में कन्वर्ट होते हैं. तो इस तरह से क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ द सिल्वर कार्बोनेट इज लार्ज एंड इट इज सपोज टू बी टेकन एज कांस्टेंट. सो K इज इक्वल टू Ag प्लस स्क्वायर CO3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई K dash. Rearranging slightly this equation, taking the K dash from this side to this side, it becomes K into K dash is equal to concentration of Ag plus 2 and concentration of CO3 minus. K into K dash is nothing but Ksp, or Ksp is called as solubility product or solubility product constant. Our solubility product constant is nothing but product of cation and anion is equal to product of cation and anion. ये हमें हेल्प करता है कि पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताने के लिए ये हमें हेल्प करता है. अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट, उस वक्त जो सॉल्यूशन रहेगा वो सैचुरेटेड रहेगा और पीपीटी नहीं बनेगी. और अगर Ksp इज लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट, लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट मतलब क्या कि आयोनिक प्रोडक्ट जब ज़्यादा रहेगा उस वक्त सॉल्यूशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड और पीपीटी बनेगी. ये हमें किस में हेल्पफुल करता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की पीपीटी बनेगी या नहीं बनेगी. अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा तो पीपीटी बनेगी, आयोनिक प्रोडक्ट कम रहेगा तो पीपीटी नहीं बनेगी. ये इसमें हमें हेल्प करता है. जबकि कॉमन आयन इफेक्ट हेल्प क्या करता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ पीपीटी इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. अगर कॉमन आयन है तो सॉल्युबिलिटी पीपीटी की कम हो जाती है. देखो रिवर्स रिएक्शन होता है, हाँ, अनआयोनिक फॉर्म में जाता है कॉमन आयन में, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है. और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस में मदद करता है कि पीपीटी बनेगी या नहीं बनेगी. अब आते हैं प्यूरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट. पीपीटी की प्यूरिटी के ऊपर आते हैं कि पीपीटी कितना प्योर है. तो जनरली there are two type of contamination for the precipitate: co-precipitation and the post precipitation. The contamination of the precipitate by a substance which are normally soluble in mother liquor is termed as co-precipitation, and this is one of the most serious causes of error in gravimetry analysis. So contamination of precipitate by the substance which are normally soluble in the mother liquor is called as co-precipitation. यानी सपोज दैट हम पीपीटी बना रहे हैं. किसका पीपीटी बना रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का पीपीटी बना रहे हैं.
अब पहले वो मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन हम मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने आपको दिया है और कहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम सल्फेट का पीपीटी बनाओ। अब सपोज कर लो हमने उसमें सल्फेट आयन डाला तो किस में कन्वर्ट हुआ, वो मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन फिल्टर करने के बाद मदर लिकर में पहले से ही जो है कुछ इम्प्यूरिटी मैग्नीशियम क्लोराइड में पहले से ही इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है कैल्शियम की। तो क्या होगा, पीपीटी बनने के बाद किसकी पीपीटी, मैग्नीशियम की सल्फेट की पीपीटी बनने के बाद क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। और यही जो कॉन्टामिनेशन रहेगा, यही इम्प्योरिटी का डिपोजिशन रहेगा, ये कहलाएगा कोप्रेसिपिटेशन। कोप्रेसिपिटेशन मतलब क्या, कि कॉन्टामिनेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट बाय द सब्सटेंस which are normally soluble in mother liquor is called as co-precipitation। फिर हमने यहाँ पर क्या एग्जांपल ली, आई अगेन रिपीट इट, कि मैग्नीशियम सल्फेट की पीपीटी हमें बनाना है, लेकिन सॉल्यूशन में पहले से ही कुछ अमाउंट में कैल्शियम है और कैल्शियम है ऑल्सो एबिलिटी टू फॉर्म द कैल्शियम सल्फेट पीपीटी। सो मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से पहले मैग्नीशियम का पीपीटी बनेगा और मैग्नीशियम सल्फेट बनने के बाद कैल्शियम की क्वांटिटी कम है, इसीलिए उसका पीपीटी बाद में बनेगा। और वो पीपीटी बनाने के बाद किस पर डिपॉजिट हो जाएगा, ओवर दी मैग्नीशियम आयन। सो दिस इज कॉल्ड एज द co-precipitation of the magnesium by calcium, and there are two types of the co-precipitation, one arising due to adsorption on the surface of precipitate and another due to the occlusion of impurity during the crystal growth of the precipitate. Post precipitation, the process in which precipitate of some component, the component that means impurity, occur on the surface of the precipitate after formation of the main precipitate is called as post precipitation। And post precipitation occur with sparingly soluble substances which form supersaturated solution। Again it is nothing but the post precipitation, यानी क्या है यहाँ पर पोस्ट प्रेसिपिटेशन, द प्रोसेस इन विच प्रेसिपिटेट ऑफ सम कंपोनेंट impurity occur on the surface of the precipitate after its formation is called as post precipitation. This process differ from co-precipitation mainly in the fact that amount of contamination increases with time for which the precipitate left in contact with mother liquor. These are the differences between co-precipitate and post-precipitation. Now digestion. देखो सबसे पहले ग्रेविमेट्री एनालिसिस में क्या करेंगे हम, के सुटेबल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हमें चूज़ करना है। जैसे हमने आपको मैग्नीशियम का सैंपल दे दिया और कहा कि मैग्नीशियम का अमाउंट मालूम करो। तो आप क्या करोगे, पहले सुटेबल प्रेसिपिटेंट यानी ऐसा एजेंट जिसके ऐड करने पर पीपीटी बनती है, इट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेंट। तो प्रेसिपिटेंट प्रॉपर हम सिलेक्ट करेंगे और जब उसको उसमें ऐड करेंगे, पहला क्या स्टेप है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर प्रेसिपिटेंट। प्रॉपर प्रेसिपिटेंट सिलेक्ट करने के बाद उसको हम सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, पीपीटी बनेगा। पीपीटी बनने के बाद हम उसको रखेंगे डाइजेशन ऑपरेशन के लिए। The process of allowing the precipitate to stand for 10 to 24 hours at room temperature or some by warming to precipitate for some time in contact with liquid from which it was formed is called as digestion or Oswald repairing। Digestion मतलब क्या है, keeping the PPT in contact with mother liquor for about 10 to 24 hours, or alternatively you can kept it for warming operation। तो इससे क्या होगा कि
जो इरेगुलर क्रिस्टल्स है बिकम्स रेगुलर। इसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टल साइज जो है, पीपीटी की साइज जो है, पार्टिकल साइज वो बढ़ेगी। पीपीटी की पार्टिकल साइज बढ़ेगी तो डिस्टेंस बिटवीन द स्पेस ऑक्यूपाइंग बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द पीपीटी मिनिमाइजेस। वो मिनिमाइज होगा तो देयर इज लेस चांस ऑफ को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। So, in order to avoid such type of the contamination, it is kept for digestion operation. After that, filtration. Filtration is nothing but the separation of precipitate from mother liquor using some porous media is known as filtration. That means separation of PPT from the mother liquor is called as filtration with the help of some porous media. Porous media, there are various type of porous media are available: filter paper, filter pulp, gooch crucible, etc. and etc. Filter pulp, etc. and etc. This operation is carried out before drying and ignition of the precipitate. The porous media used for filtration are: 1. Filter paper, number 1. Filter mat. Filter paper are of various type depending upon the porosity of filter. Filter mat, gooch crucible, porous fitted plate of resistance glass, etc. and etc. Washing of the precipitate. पहले हमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, देन डाइजेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, देन filtration of the precipitate, and then after washing of the precipitate. फिल्टर पेपर के ऊपर जो प्रेसिपिटेट है उसको वॉश करना. जनरली a precipitate is washed either with the water or specified wash liquid before it is dried and weighed. The objective of washing of the precipitate is to remove the impurity on the surface of the precipitate. सरफेस पे, पीपीटी की सरफेस पे जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करना. द चॉइस ऑफ वॉश लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द सॉल्युबिलिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रेसिपिटेट. यानी ऐसा हम वॉशिंग लिक्विड सेलेक्ट करेंगे जो पीपीटी को पेप्टाइज ना करे, पीपीटी को डाइजेस्ट ना करे, पीपीटी को डिज़ोल्व ना करे, ऐसा वॉशिंग लिक्विड हम सेलेक्ट करेंगे जो एक आयन कॉमन रखता है वॉशिंग लिक्विड से, जो इम्प्योरिटी को डिज़ोल्व करे, पीपीटी को डिज़ोल्व नहीं करे. एंड द चॉइस ऑफ वॉश लिक्विड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग 3 classes. Solution which prevent the precipitate from becoming colloidal and passing through the filter paper. Solution which reduces the solubility of precipitate. Solution which prevent the hydrolysis of salt of weak acid. And the ideal wash liquid should satisfy the some condition. It should not dissolve. The ideal wash liquid क्या रहता है, ऐसा वो लिक्विड which should not dissolve the precipitate but dissolve the impurity. ये आइडियल वॉश लिक्विड रहता है. ऐसा वो लिक्विड आइडियल कहलाता है. शुड हैव नो डिस्पर्सिव एक्शन ऑन द प्रेसिपिटेट. It should not form any volatile or insoluble product with the precipitate. It should be easily volatile at room temperature of drying the precipitate. Then drying and ignition of precipitate. Drying and ignition of precipitate. After washing the precipitate, it is brought to constant composition before it is weighed, and for this purpose the precipitate have to dry. When temperature employed for process is below 250 degrees C, this operation is called as drying. When temperature employed for the process between the 250 to 1200 degrees C, this operation is called as ignition. मतलब प्रेसिपिटेट को जब हम ड्राई करेंगे बिलो 250 डिग्री सी पर तो वो कहलाता है ड्राइंग ऑपरेशन. लेकिन जब पीपीटी को ड्राई करेंगे 250 से 1200 डिग्री सी तक, उस वक्त वो कहलाता है इग्निशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इंसिनरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बर्निंग ऑफ द प्रेसिपिटेट.
Thank you for watching.